So now I'm starting with the numerical on calculation of specific conductivity and molar conductivity. Along with that, equivalent conductivity, which I forgot here to mention, very important. So we will be calculating equivalent conductivity, molar conductivity, and specific conductivity of the solution given. So in your theory part, you must have gone through what is specific molar or third one is equivalent conductivity. You must have gone through all this, right? तो मैं ज़्यादा theory part पे तो नहीं जाऊंगी. So I will be focusing more on the calculation part. So we will be starting with the numerical on these. Now, first we start with the numerical on this topic. Let me discuss a few important, things regarding this particular type of numerical. See, हम एक थोड़ा सा review ले लेते हैं terms का. So R, capital R, as you know, is the resistance of a conductor. अब यहाँ पे क्योंकि हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हैं, सो इलेक्ट्रोलाइट्स आर दी कंडक्टर्स. जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर दी, जो उनमें आयंस होते हैं, दे आर दी कैरियर्स ऑफ करंट. सो बेसिकली these are our conductors. When we talk about resistance over here, we are talking about resistance in these electrolytic solutions when current is passed through them. So R is resistance, and आपने Ohm's law में सब कुछ पढ़ा हुआ है, physics में भी पढ़ा हुआ है, but I am just giving a revision of that क्योंकि वो सब हमने use करना है in our numerical in this video. So R is equal to resistance, right? And resistance is equal to that rho L by A. Now what is rho? Rho is known as resistivity, right? L is what? What is L? L is the L and A जो है ये आपने, अगर आपको if you remember again Ohm's law, so then in this particular type, like electrolysis के case में, L is the distance between the two electrodes. It is the distance between the two electrodes. जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स में डिप होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस इज दी L, and A is the area of cross section of each electrode. Area of cross section of each electrode. So this you must be aware of when you have gone through your theory part, and जब उसके formulas पे Ohm's law वगैरह पे आए हो तो आपको पता है this is what is known as L and A. Now coming to another term known as specific conductivity. Specific conductivity, which is denoted by K kappa. इसको ये K नहीं है, this is kappa. So this is the inverse of resistivity first of all, and it is, इसको अगर हमने लिखना हो in terms of आपका L by A, तो हम क्या लिखते हैं? तो we use another formula. Now one thing more before I go with that. R is resistance, then if C is the conductance, then R is equal to 1 by C. C is what? C is the conductance of the electrolyte. ये सब terms आपने पढ़ी होंगी. Now when I was talking about this thing, kappa, so specific conductivity in terms of your L by A, it is written as C into L by A. And L by A is known as cell constant. This is cell constant because ये एक पर्टिकुलर सेल के लिए इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है. ऑब्वियसली इलेक्ट्रोड्स के जो बीच में डिस्टेंस हो गए उनका जो एरिया ऑफ सेक्शन होगा फॉर अ पर्टिकुलर सेल्स, ये L और A की फिक्स्ड वैल्यू होगी. सो इनकी रेशियो की भी फिक्स्ड वैल्यू होगी, बट इनका यूनिट होता है पर सेंटीमीटर. और L by A को हम G स्टार से, कुछ बुक्स में G स्टार से डिनोट किया होता है. सो वी कैन राइट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू G स्टार. एंड किसी बुक्स में जो आपकी कंडक्टेंस होती है C, उसकी जगह G भी लिखा होता है. सो kappa can be written as G into G star or C into G star. That is all right. So whereas G star is known as the cell constant. ठीक है जी. C हमारा जो हो गया
G star, that is cell constant. C और G is same. So आप उसको C लिख लो या G लिख लो. This is the conductance. One more thing. अब बात करते हैं, ये तो होगी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकालनी होगा हमें, तो हम क्या करेंगे, कंडक्टेंस into cell constant, right? Conductance into cell constant. Now talking about equivalent conductivity. Equivalent conductivity. Now equivalent conductivity is denoted by lambda equivalent, EQ. This is equal to kappa, that is specific conductivity into 1000 over normality. इसकी डेरिवेशन बुक में है, तो मैं ये नहीं जा रही हूँ इस टॉपिक उस पर. Then molar conductivity. Molar conductivity is denoted by lambda small m, and this is equal to again kappa into 1000 over molarity. So हम इन्हीं पे बेस्ड न्यूमेरिकल करने वाले हैं. न्यूमेरिकल आर क्वाइट इजी, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए एज यूजुअल, एंड देन वी विल बी डन विद इट. तो चलिए अपन अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज specific conductivity of a 0.12 normal solution. So normality of the solution given is 0.12, right? And specific conductivity, that is kappa, is equal to 0.024 ohm inverse centimeter inverse. ठीक है. अब आप इनको यूनिट्स तो आपको ऑब्वियसली इजी होते हैं, बिकॉज अगर आपको ये पता है कि ये किस फॉर्मूला से आते हैं, मतलब कापा इज इक्वल टू व्हाट, देन यू कैन कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ दिस ऑल्सो. मैं आपको वैसे बता देती हूँ, जैसे देखो कापा इज व्हाट, सी इंटू एल बाय ए. ना सी इज कंडक्टेंस. कंडक्टेंस के यूनिट्स होते हैं रेजिस्टेंस के उल्टे. रेजिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं, ओम. तो कंडक्टेंस के क्या होंगे, ओम इनवर्स. तो यहाँ पे आ गया ओम इनवर्स इसका यूनिट. नाउ एल इज लेंथ, इट इज टेकन इन सेंटीमीटर, and A is what, area of cross section, it is taken in centimeter square. तो ये बन गया सेंटीमीटर इनवर्स. सो ऐसे हम यूनिट्स अगर हमें याद नहीं होते तो ऐसे हम निकाल सकते हैं कि क्या यूनिट्स होंगे. सो दिस इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. हमें क्या निकालना है, डिटरमिन इट्स इक्विवेलेंट conductivity. Now equivalent conductivity, you know, lambda equivalent is equal to what, it is equal to specific conductivity into 1000 over normality, right? तो ये तो सब गिवन ही है, इसमें तो कुछ था ही नहीं हमें सोचने वाला. So 0.024 into 1000 upon 0.12, and ये वैल्यू आ जाएगी 2000 ohm inverse centimeter square equivalent inverse. So this is the value of equivalent conductivity for this question. चलिए सेकेंड न्यूमेरिकल करते हैं इसका. The specific conductivity of n/50 solution of KCl. So n/50 यानी कि नॉर्मेलिटी, किसी किसी बुक में नॉर्मेलिटी को ऐसे भी लिखा होता है, C equivalent EQ. So this is equal to 1/50. इसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी गिवन है, यानी कि कापा गिवन है 0.02765 सीमन सेंटीमीटर इनवर्स. ना आपको पता है ओम इनवर्स और सीमन सेम चीज होती है. अब ये चीजें सारी मैं बताऊंगी नहीं, फिजिक्स में भी आपने पढ़ी होंगी, और आपके इसी इन पर्टिकुलर न्यूमेरिकल जो है इनसे पहले जो डेरिवेशंस हैं यूनिट्स की, वो सब आपने किया होंगी. सो आई विल नॉट बी गोइंग थ्रू दैट. तो ये आपका हो गया स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का वैल्यू. देन व्हाट एल्स इज गिवन, रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सॉल्यूशन, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सॉल्यूशन प्लेस्ड इन द सेल इज 2000 ohms. This is 2000 ohms. What is cell constant? Now cell constant is what, G star. Very simple. K, I mean specific conductivity is equal to what, this is equal to cell constant into conductance. Now हमें ये निकालना है, राइट. R हमें गिवन है, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, 1/r, that is equal to 1/2000. एंड हमें क्या निकालना है, सेल कांस्टेंट. तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू K अपॉन C. K गिवन है, आई मीन कापा गिवन है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी 0.02765 अपॉन कंडक्टेंस 1/2000. तो ये आ जाएगा 5.53 सेंटीमीटर इनवर्स. तो हमारा इनवर्स ये आ गया हमारा सेल कांस्टेंट. सो दिस न्यूमेरिकल वाज आल्सो सिंपल. नेक्स्ट वन, द रेजिस्टेंस ऑफ अ डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन.
डेसी नॉर्मल सोल्यूशन मतलब आपकी जो नॉर्मेलिटी है दैट इज इक्वल टू 0.1. The resistance of a decinormal solution of an electrolyte in a conductivity cell was found to be equal to 245 ohms. Okay, calculate the lambda equivalent, I mean equivalent conductivity of the solution, यानी कि हमें ये निकालना है this into 1000 over normality, ये हमें निकालना है. If the solution, if the electrodes in the solution were 2 centimeter apart, मतलब length जो है L जो है that is 2 centimeter, distance between electrodes and area of cross section is 3.5 centimeter. अब आपको नॉर्मलिटी पता है, आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकालनी पड़ेगी इन दोनों, इन सब वैल्यूज से. सो ओके ग्रेट. सो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज व्हाट? दिस इज इक्वल टू conductance into cell constant L by A. Now this is equal to conductance, यहाँ से क्या आ जाएगी 1 by 245. So this is 1 by 245 into L है 2, this is 3.5, this is equal to 2 upon 857.5. इसको ऐसे ही रहने देते हैं और then we will substitute in equivalent conductivity के फॉर्मूला में. सो कापा निकाल लिया हमने. दिस इज 2 अपॉन 857.5 into 1000 over normality is 0.1. So when you solve it, this is equal to 23.32 ohm inverse centimeter square equivalent inverse. So this was also quite simple one. Okay, so let's move on to the next fourth numerical. Calculate the equivalent conductivity of 1 molar H2SO4 solution. अब हमें यहाँ पे निकालनी तो है equivalent conductivity of H2SO4. तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा होता है सिंपल स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू 1000 ओवर नॉर्मेलिटी. बट हमें गिवन क्या है यहाँ पे? वी हैव बीन गिवन मोलैरिटी. सो मोलैरिटी ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 1. ये गिवन है हमें. इफ इट्स कंडक्टिविटी यानी कि दिस इज इक्वल टू 26 इंटू 10 रेज टू पावर -2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. तो हमें क्या निकालनी है इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. अब अगेन ये सिंपल आपको सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन आ गया कि आपको मोलैरिटी गिवन है, आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है. अब अगर आपको याद हो, जब आप नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे तो नॉर्मेलिटी ऑफ एन एसिड, ये सिंपल वे है, मैं पूरा निकाल के भी दिखा सकती हूँ, बट एक सिंपल फॉर्मूला है. नॉर्मेलिटी ऑफ एन एसिड से हम डायरेक्टली मोलैरिटी निकाल सकते हैं, और अगर हमें मोलैरिटी गिवन हो एसिड की तो हम स्ट्रेट अवे उसकी नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं. नॉर्मेलिटी ऑफ एन एसिड इज इक्वल टू मोलैरिटी, इट्स मोलैरिटी इनटू इट्स बेसिसिटी. दिस इज द सिंपल फॉर्मूला. ओके, नाउ सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी क्या होती है? Basicity is number of replaceable hydrogen ion. So basicity of H2SO4 is equal to 2. H2SO4 में there are 2 replaceable hydrogen ions. So इसकी basicity हो गई 2. हमें क्या चाहिए? Normality. So normality क्या हो गई of H2SO4? Therefore normality of H2SO4 is equal to its molarity is 1 into 2. So this is equal to 2. So 2 हो गई नॉर्मेलिटी. अब तो कुछ है ही नहीं है, ये गिवन है, नॉर्मेलिटी हमने निकाल ली है. अब आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है. सो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी which is given as 26 into 10 raised to power -2 into 1000 upon 2. सो आपका ये आंसर आ जाएगा 130 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स. सो अगेन न्यूमेरिकल, आई थिंक इजी था. नेक्स्ट वन, द रेजिस्टेंस ऑफ अ 0.01 नॉर्मल NaCl सोल्यूशन. सो नॉर्मेलिटी गिवन है NaCl सोल्यूशन की. नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 0.01 नॉर्मल. इसकी रेजिस्टेंस है 200 ओम. इस सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस है 200 ओम. सेल कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी सेल इज यूनिटी.
तो आपका जो G स्टार है या L by A है दैट इज 1. कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. अब ये अगेन कुछ इसमें बड़ा चीज नहीं है. यू नो दैट लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू 1000 ओवर नॉर्मेलिटी. ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. नाउ ये तो हम कर चुके हैं. स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट. कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 बाय यहाँ से 200, इसके यूनिट्स हो जाएंगे ये. सो दिस इज 1 बाय 200 इनटू सेल कांस्टेंट तो 1 है. दिस इज इक्वल टू आपका आ गया स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. दिस इज इक्वल टू 1 बाय 200. तो इसमें सब्स्टिट्यूट करो. This is equal to 1 by 200 into 1000 over normality is 0.01. So आपका ये आंसर आ जाएगा 500. ऑब्वियसली ये इससे कटेगा ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा 500 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स. तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी. अब ये जो न्यूमेरिकल कराने वाली हूं मैं आगे 3 और 4 न्यूमेरिकल्स हैं. दे ऑल आर सिमिलर विद 1 और 2 सिंपल वेरिएशंस. ये थोड़े से समझने वाले हैं, बट वंस यू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग, द कॉन्सेप्ट, ऑल ऑफ देम आर सिमिलर. अब देखो ये कह रहे हैं द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 नॉर्मल KCl सॉल्यूशन इज दिस. हमें एक KCl सॉल्यूशन दिया है, इसकी कंडक्टिविटी दी हुई है. When a conductivity cell was filled with the same solution, it offered a resistance of 484 ohms. तो जब हमने इस कंडक्टिविटी सेल को इस सॉल्यूशन से फिल किया KCl सॉल्यूशन से, तो उसकी रेजिस्टेंस आई 484 ओम. अभी सेम सेल को, सेम कंडक्टिविटी सेल, यानी कि वही इलेक्ट्रोड्स, सेम सेल, सेम डिस्टेंस, एवरीथिंग सेम, the same distance between the electrodes, same electrodes. The same cell was then filled with 0.01 normal solution of sodium chloride at same temperature, which gave a resistance of 5194 ohms. Calculate the value of equivalent conductivity of 0.01 normal NaCl solution. तो हमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसकी निकालनी है. यहाँ पे दो सॉल्यूशंस की बात हुई है कि पहले हमने एक कंडक्टिविटी सेल लिया, उसमें हमने 0.01 नॉर्मल KCl सॉल्यूशन फिल किया, जिसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है 0.0014106. ठीक है, और जब उसको फिल किया KCl से, तो रेजिस्टेंस आई सॉल्यूशन की 484 ओम्स. अब उस इलेक्ट्रोलाइट को निकाल लिया, KCl को बाहर निकाल लिया. अब हमने सेम सेल को फिल कर दिया विद 0.01 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड उसी टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस पे. तो रेजिस्टेंस आई हमारी 5194 ओम्स. हमें ये कहा जा रहा है कि आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालिए सोडियम क्लोराइड की. अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी तो सिंपल होती है, हमें पता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू 1000 ओवर नॉर्मेलिटी. राइट, यही फॉर्मूला होता है. नॉर्मेलिटी हमें पता है, हमारा जो ये सोल्यूशन है दिस इज 0.01 नॉर्मल, हमारा जो NaCl सोल्यूशन है. हमें चाहिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ NaCl. नाउ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ NaCl हमें पता है ये होता है सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस. कंडक्टेंस कहां से आ जाएगी, इसकी रेजिस्टेंस दी हुई है R of NaCl. रेजिस्टेंस फॉर दिस NaCl सॉल्यूशन इज 5194 ohms. तो यहां से कंडक्टेंस हो जाएगी 1 बाय 5194 ओम इनवर्स. राइट, तो अगर मुझे ये निकालना है, मेरे पास सेल कांस्टेंट नहीं है, मेरे पास ये है 5194 ohms. तो इफ आई वांट टू कैलकुलेट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड, आई नीड सेल कांस्टेंट. सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है लेंथ, आई मीन सेल कांस्टेंट होता है L by A. व्हाट इज L? L is the distance between the electrodes of the conductivity cell and A is the area of cross section of each of the electrodes. अब सेल तो सेम है, जब हमने KCl फिल किया वही सेल था, जब हमने NaCl फिल किया सेम सेल था. यानी कि अगर मैं सेल कांस्टेंट जो जो मुझे डेटा KCl के लिए दिया हुआ है, अगर मैं KCl के डेटा से G स्टार यानी कि सेल कांस्टेंट निकाल सकूं, तो वही सेल कांस्टेंट की वैल्यू तो NaCl के लिए होगी, क्योंकि सेम ही सेल में हमने NaCl को फिल किया है. सो व्हाट वी विल डू,
we will calculate cell constant G star from the data given for KCl solution, और वहां से आ जाएगा. Why? क्योंकि हमारे पास वहां से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दी हुई है हमें KCl सॉल्यूशन की, ये हमें दी हुई है तो हम निकाल सकते हैं. हमें रेजिस्टेंस भी दी हुई है तो हम निकाल सकते हैं. सो हमें क्या डेटा दिया हुआ KCl सॉल्यूशन का? नॉर्मेलिटी दी हुई है, उसकी हमें जरूरत नहीं है. नॉर्मेलिटी क्या दी हुई है इसकी? 0.01 नॉर्मल. वी डोंट रिक्वायर दैट, राइट. हमें दी हुई है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, दैट इज 0.00141006. हमें दी हुई है कंडक्टेंस, सॉरी नॉट कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस आर की वैल्यू हमें गिवन है 484 ओम्स. मैं इन दोनों वैल्यूज को यूज करके इजीली निकाल सकती हूँ सेल कांस्टेंट. वी नो दैट specific conductivity of KCl is equal to cell constant, तो सेम ही रहेगा, into conductance of KCl solution, right. Now conductance is equal to 1 by resistance, और resistance कितना है? 484 ohms. so यहाँ से जो हमारा G star है that is equal to specific conductivity over conductance. specific conductivity की वैल्यू दी हुई है 0.0014106. कंडक्टेंस है 1 by 484. तो यहां से जब मैं इसको सॉल्व करूंगी, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसके देखो कैलकुलेशन पे क्या वैल्यू आई है. तो ये आया करके 0.6827 सेंटीमीटर इनवर्स आ गया सेल कांस्टेंट जो मुझे चाहिए था. नाउ क्योंकि मैंने सेल कांस्टेंट निकाल लिया तो नाउ अब मैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ NaCl निकाल सकती हूँ. देयरफॉर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इज इक्वल टू दिस सेल कांस्टेंट इनटू इसका कंडक्टेंस क्या थी? 1 by 5194. G स्टार की वैल्यू क्या निकाली है मैंने? 0.6827 डिवाइडेड बाय 5194. इस वैल्यू को एज सच यूज कर लेते हैं, हम इसको सॉल्व नहीं करते. अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इनटू 1000 ओवर इट्स नॉर्मेलिटी. अब तो कुछ बचा ही नहीं, वेरी सिंपल. सो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या आई है? 0.6827 अपॉन 5194 इंटू 1000, और ये सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या थी NaCl के? 0.01. so 0.01 and upon solving this will be equal to 131.45 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, या आप चाहो तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स भी लिख सकते हो. सो ऐसे हम करते हैं, एक डेटा को यूज करके सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं एंड देन वी यूटिलाइज फॉर कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, या कई बार आपको मोलर कंडक्टिविटी भी आ सकता है दूसरे सोल्यूशन की निकालना, तो उसमें भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं दिस डेटा, दिस सेल कांस्टेंट का वैल्यू एक सोल्यूशन के डेटा से. ठीक है, तो अभी हम ऐसा ही और न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी इस तरह के न्यूमेरिकल की. ठीक है, चलिए फिर से करते हैं एक और न्यूमेरिकल, आई मीन सिमिलर टाइप का. In a particular cell, 0.01 molar solution of KCl gave a resistance of 150 am. तो for KCl हमें क्या डेटा दिया हुआ है? KCl के लिए हमें मोलारिटी दी हुई है. KCl की पोटाशियम क्लोराइड सॉल्यूशन की मोलारिटी है 0.01 मोलर. इसकी रेजिस्टेंस है इस सॉल्यूशन की 150 ओम एट 298 केल्विन. ओके, टेम्परेचर पे बहुत डिपेंड करती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और हर चीज की वैल्यू, तो इसलिए टेम्परेचर मेंशन किया होता है. while 0.01 molar solution of HCl, for HCl molarity is equal to 0 point, again same molarity, and resistance for this solution is 51.30 ohm at the same temperature. Now at 298 Kelvin, the specific conductivity of 0.01 molar KCl solution is this.
सो इसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दी है, तो मैं इसको ऊपर लिख लेती हूँ यहाँ पे। दिस इज 0.001408 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर HCl सॉल्यूशन। अब हमें पता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ HCl सॉल्यूशन इज इक्वल टू इट्स स्पेसिफिक कंडक्टिविटी किसकी, HCl सॉल्यूशन की, इनटू 1000 ओवर इट्स नॉर्मैलिटी। दी हुई है हमें मोलैरिटी, हमें चाहिए नॉर्मैलिटी। कोई बात नहीं, वो हम निकाल लेंगे, मैंने आपको बताया था पीछे एक फॉर्मूला, तो वो बाद में करेंगे। पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम ये निकाल लेते हैं आपका दिस थिंग, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं। नाउ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ HCl निकालने के लिए सिमिलरली जैसे हमने पीछे की, एग्जैक्टली सिमिलर, this is equal to cell constant into its conductance. Now conductance is what? Conductance is 1 by, just a second, इसकी हमें रेजिस्टेंस क्या दी हुई है, इसकी रेजिस्टेंस है 51.30, तो कंडक्टेंस हो जाएगी 1 बाय 51.30। सो यहाँ से सेल कांस्टेंट इंटू 1 बाय 51.30, तो ये निकालने के लिए मुझे अब लगेगा G स्टार, क्योंकि सेम सेल को पहले KCl से फिल किया फिर HCl से फिल किया, तो अगेन G जो होगा, सॉरी G स्टार जो होगा यानी कि सेल कांस्टेंट जो होगा वो सेम होगा, तो KCl के डेटा से हम निकाल लेंगे अपना सेल कांस्टेंट। सो लेट अस कैलकुलेट सेल कांस्टेंट यानी कि G स्टार फ्रॉम द KCl डेटा। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, वो जैसे मैंने पहले निकाला था एग्जैक्टली वैसे निकलेगा। KCl डेटा से कैसे, नाउ दिस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस इसकी भी हो जाएगी 1 अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, इसकी रेजिस्टेंस है 150। ओ गॉड, व्हाट हैपेंड, जस्ट अ सेकेंड, I have to find out the page. Just a second, I'll find out. Okay, yes, I got it. Okay, चलिए, so यहाँ से रेजिस्टेंस है 150 ओम, तो कंडक्टेंस इसकी हो जाएगी 1 बाय 150, राइट, ओम इनवर्स। और हमें चाहिए सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ओवर कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या गिवन है KCl के लिए, 0.001408, तो ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। दिस इज इक्वल टू 0.001408 अपॉन 1 बाय 150, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 0.21132 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हो गया हमारा सेल कांस्टेंट G स्टार। बस अब हम क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट, लेट अस कैलकुलेट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी फॉर HCl सॉल्यूशन। ठीक है, एंड इसकी वैल्यू यानी कि K कापा फॉर HCl विल बी इक्वल टू अगेन सेल कांस्टेंट इनटू इसकी कंडक्टेंस जो मैंने पीछे किया था 50 G स्टार इनटू 1 बाय 51.30। ठीक है, G स्टार निकाल लिया, 0.21132 इंटू 1 अपॉन 51.30। इसको ऐसे ही यूज कर लेंगे इस इक्वेशन के लिए, लैम्डा इक्विवेलेंट फॉर K नॉट KCl, HCl के लिए चाहिए हमें। सो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फॉर HCl इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन नॉर्मैलिटी। हमें गिवन है मोलैरिटी ऑफ HCl कितनी गिवन है, जस्ट अ सेकेंड,
molarity of HCl is equal to 0.01. ना मैंने अभी पीछे बताया था कि मोलारिटी और नॉर्मेलिटी को इंटर कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, नॉर्मेलिटी ऑफ एन एसिड is equal to its molarity into basicity. HCl की basicity क्या है? What is the basicity of HCl? It is 1. Basicity of HCl is equal to 1 because there is only one ionizable hydrogen ion, one replaceable hydrogen ion. There, wow. Okay. Therefore, normality of HCl is equal to 0.01 into 1 which is equal to 0.01. वो तो सेम आ गई. तो यहाँ से equivalent conductivity of HCl is equal to specific conductivity जो कि आई थी 0.21132 अपॉन, ये आई है 0.21132 अपॉन 51.30 into 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी 0.01 और ये वैल्यू आएगी कैलकुलेट करके, होल्ड ऑन आई थिंक आई एम मेकिंग अ मिस्टेक, नो राइट ठीक है. तो ये आ जाएगी वैल्यू अपॉन कैलकुलेशन, this will be equal to 411.12 ohm inverse centimeter square equivalent inverse. तो ये आ गई आपकी equivalent conductivity of HCl solution. ठीक है, चलिए अभी एक और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी टाइप का. A cell with N/50 KCl solution showed a resistance of 550 ohm at 25 degrees Celsius. The specific conductivity of N/50 KCl at 25 degrees Celsius is 0.002768 ohm inverse centimeter inverse. The cell is filled with N/10 ZnSO4 solution at 25 degrees Celsius. It shows a resistance of 72.18 ohm. Find the cell constant and molar conductivity of ZnSO4 zinc sulfate यानी कि solution. यानी कि जिंक सल्फेट सोल्यूशन का हमें सेल कांस्टेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है. अब जो सेल कांस्टेंट केसीएल से आएगा वही सेल कांस्टेंट होगा जिंक सल्फेट सोल्यूशन को, क्योंकि दोनों को एक ही सेल में फिल किया, पहले केसीएल को फिल किया, उसको निकाल के बाद में जिंक सल्फेट को फिल किया. ठीक है, अब मोलर कंडक्टिविटी भी आ जाएगी, सेल कांस्टेंट निकलेगा तो. पर हम एक बार लिख लेते हैं, हमें डेटा क्या दिया हुआ है, केसीएल का क्या दिया हुआ है, केसीएल की हमें दी हुई है नॉर्मेलिटी, जिसकी हमें फिलहाल जरूरत नहीं है, पर लिख लेते हैं 1/50. हमें दिया हुआ इसका रेजिस्टेंस 550 ओम, हमें दी हुई है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इसकी 0.002768 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. और हमें क्या डेटा दिया हुआ है, हमें डेटा दिया हुआ है जिंक सल्फेट सोल्यूशन का. हमें इसकी नॉर्मेलिटी दी हुई है इक्वल टू 1/10. हमें इसकी रेजिस्टेंस दी हुई है 72.18 ओम. हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सेल कांस्टेंट जी स्टार L/A की वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है मोलर कंडक्टिविटी. ना मोलर कंडक्टिविटी ऑफ जिंक सल्फेट विल बी इक्वल टू इट्स स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू, मैं एक बार इसको नीचे लिखती हूँ, there's a reason, I'll tell you. So just a second, molar conductivity of zinc sulfate will be equal to its specific conductivity zinc sulfate की. यहाँ पे गलती से डेटा KCl का मत यूज कर लेना. सो हमें जिंक सल्फेट की निकालनी है जैसे हम पहले निकालते आए न्यूमेरिकल में, इनटू 1000 अपॉन इट्स मोलारिटी. हमें क्या दी हुई है, पहली चीज तो नॉर्मेलिटी दी हुई है, नॉर्मेलिटी दी हुई है, तो हम नॉर्मेलिटी को पहले मोलारिटी में कन्वर्ट कर लेंगे, वो बाद में करते हैं. पहले हम क्या करते हैं, हम जिंक सल्फेट की स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकालते हैं. ना स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ जिंक सल्फेट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू इट्स सेल कांस्टेंट इनटू इट्स कंडक्टेंस. इसकी रेजिस्टेंस है 72.18, तो इसकी कंडक्टेंस हो जाएगी
1/72.18। तो यहाँ से सेल कांस्टेंट इनटू ये आ गया 1/72.18। अब हमें यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी चाहिए जिंक सल्फेट की, तो हमें क्या चाहिए, सेल कांस्टेंट, जो कहाँ से आएगा, जो KCl से आएगा। तो क्या कर रहे हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ सेल कांस्टेंट फ्रॉम KCl डेटा, जैसे हम पहले करते आए हैं। तो यहां से आपका यस, सो के कापा फॉर KCl इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस ऑफ KCl कंडक्टेंस। नाउ इसकी रेजिस्टेंस क्या है, इसकी रेजिस्टेंस है 550 ओम्स, तो इसकी कंडक्टेंस हो जाएगी 1/550। यहाँ से सेल कांस्टेंट आ गया हमारा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ओवर कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी गिवन है इसकी, 0.002768। तो ये आ गया हमारा 0.00278 अपॉन 1/550। तो ये आएगा हमारा सेल कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू 1.5224 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमारा एक कैलकुलेशन तो हो गया, सेल कांस्टेंट हमने निकाल लिया। अब सेल कांस्टेंट निकाल लिया तो इसको हम यहाँ पे फिल करेंगे, यहाँ पे। सो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ जिंक सल्फेट is equal to, this is equal to cell constant into 1/72.18. This is equal to 1.5224 upon 72.18। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, सीधा लैम्डा एम की वैल्यू में पुट करेंगे इसको। अब क्या था, लैम्डा एम यानी कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। के तो कापा तो निकाल लिया हमने, ये तो निकाल लिया, हमें चाहिए मोलैरिटी। सो वी हैव टू कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ ZnSO4 सॉल्यूशन। ठीक है, वो कैसे आएगी, देयर आर टू वेज टू कैलकुलेट। एक तो सिंपल है, जो अगर आपको याद हो तो वो ये है कि पहले मैंने किया था नॉर्मैलिटी ऑफ एन एसिड एंड मोलैरिटी ऑफ एन एसिड में फॉर्मूला। नाउ दिस इज अ सॉल्ट, सो नॉर्मैलिटी of a salt is equal to molarity into charge on cation। Zn हमारा cation है, इस पे चार्ज है 2+, तो 2 चार्ज है यानी कि। सो इसकी नॉर्मैलिटी है हमारी कितनी गिवन है, नॉर्मैलिटी है n/10। n/10 का मतलब 0.1 नॉर्मल। सो दिस इज 0.1, this is equal to molarity into 2. This implies molarity of zinc sulfate is equal to 0.1/2 यानी कि 0.05। एक तो ये है, ऐसे निकालते हैं, लेकिन कई बार ये चीज हमें भूल जाती है, तो हमें एक पता होना चाहिए, जो हम बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशंस करते हैं वो हमें पता होनी चाहिए। ये अगर हमसे हमें ये नहीं भी याद रहा कि चार्ज ऑन कैटायन या कुछ कैसे हम नॉर्मैलिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट करते हैं, तो एक वे ये है, देखो 0.1 ये किसी के लिए भी है, सॉल्ट हो, बेस हो, एसिड हो, सबके लिए एक आप ऐसे कर सकते हैं। सो 0.1 नॉर्मल जिंक सल्फेट का मतलब मींस 0.1 gram equivalent of ZnSO4 in 1 liter of solution। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है, 0.1 इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ZnSO4 अपॉन इट्स इक्विवेलेंट वेट।
बेसिकली मुझे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए मोलैरिटी के लिए जिंक सल्फेट के 1 लीटर में, मैं वही निकाल रही हूँ. नाउ अमाउंट ऑफ, देयरफॉर, अच्छा इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया इसका? इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक सल्फेट इज इक्वल टू इसका मॉलिक्यूलर वेट, दिस इज दिस अपॉन 2. 2 इज व्हाट? 2 इज अगेन चार्ज ऑन केटाइन. जो 2 होता है दैट इज चार्ज ऑन केटाइन. तो यहां से अमाउंट ऑफ ZnSO4 is equal to 0.1 into 161.47 upon 2. This is equal to ये आ जाएगा 8.07. तो नंबर ऑफ, ये आ गया हमारा इतने ग्राम. therefore number of moles of ZnSO4 is equal to 8.07 upon its molecular weight, which is 161.4. What is going wrong? 47, and this is equal to 0.05. तो यही आया था यहाँ से. तो ये एक्चुअली ऐसे आता होता है, ये जो फॉर्मूलेज हैं ये ऐसे ही आए हुए हैं. ये पूरा डिटेल वे है निकालने का. 0.05. तो ये आपको याद रहना चाहिए. 0 इजी है ये. तो यहाँ से हमारे पास मोलैरिटी आ गई. अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मोलर कंडक्टिविटी. तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ जिंक सल्फेट इज इक्वल टू, क्या निकाला था हमने यहाँ पे? ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी विच इज इक्वल टू 1.5224 अपॉन 1.5224 अपॉन 72.18 into 1000 अपॉन इट्स मोलैरिटी विच इज आई, विच इज जो कैलकुलेट करके आई है 0.05 मोल्स. और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, जस्ट लेट मी चेक आंसर क्या आता है. ओके, इसका आंसर आता है कैलकुलेट करके, दिस इज इक्वल टू 421.8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. तो ये आपका न्यूमेरिकल था. ये सारे न्यूमेरिकल सिमिलर हैं. ये लास्ट जो 4 न्यूमेरिकल दे वर क्वाइट सिमिलर. एंड बस कहीं पे मोलैरिटी दी है, नॉर्मलिटी निकालनी है, या नॉर्मलिटी दी है, मोलैरिटी निकालनी है, और फिर आपको आपके लैम्डा एम या लैम्डा इक्विवेलेंट, आई मीन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्मूला में उसको यूज करना है. बाकी कैलकुलेशन एग्जैक्टली सिमिलर थी जैसे हम अब तक पिछले न्यूमेरिकल 3 न्यूमेरिकल करते आए हैं. सो आई होप you must have been clear with the concepts, with the kind of numerical which I have taken up in this video. अब इसमें एक न्यूमेरिकल मैंने छोड़ दिया है, 9th one. ये बिल्कुल वही न्यूमेरिकल है जो हम पिछला करते आए हैं. सो इसमें हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है कॉपर सल्फेट की. इसमें तो क्लियर कट मोलैरिटी गिवन है. ठीक है, आपको सिर्फ सेल कांस्टेंट निकालना पड़ेगा KCl की वैल्यू से, जैसे हम पिछले न्यूमेरिकल में करे हैं, जैसे हमने सॉल्व किया है पिछले न्यूमेरिकल में. सो इन द सिमिलर वे यू विल बी कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट, एंड देन सिंपल है, वहां से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकालिए फॉर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. फिर उस स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को यूज कीजिए मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्मूला में, विच इज लैम्डा m इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ copper sulfate into 1000 upon its molarity which is 0.01. तो ये मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ. This you will be doing yourself, right? So this was all about the numerical on equivalent conductivity, specific conductivity or molar conductivity. If I find some more good numerical on the same topic, I will be taking up them in my next video.